نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انکا حامد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حامد مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی ایک عظیم یادگار۔ تو قربانی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اکثر ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یا اس کا گوشت کھانا اور کھلانا اور اس کو تقسیم کرنا، یا پھر بعض لوگوں میں ذہن میں تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ سیخ کباب اور خیمہ اس طریقے سے کھانا اور انجوائے کرنا۔ نعوذ باللہ، ایسا ہے بالکل بھی نہیں۔ قربانی سے مطلب یہ سوچ اور یہ فیلنگ انسان کی ہونی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کے نزدیک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے نزدیک کیا تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مطلب اعمال کا دار و مدار جو ہے کیا ہے، وہ نیتوں پر ہے کہ آپ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو قربانی سے مراد ہمارے دل میں وہ جذبہ آنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ قربانی تو دراصل نفس کی قربانی ہوتی ہے، جیسے سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، یعنی کہ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو قربانی سے مراد ہمیں ایک بہت ہی اہم نبی کی یاد آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم نبی کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے واحد نبی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو پر سیکریفائس کیا، اور ہر چیز کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن چیزوں سے آزمایا اس میں وہ پورے کے پورے ثابت قدم رہے، اور ان تمام قربانیوں میں جو ہے وہ کامیاب رہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت ہی بڑی پوسٹ پر سلیکٹ کیا، اور وہ پوسٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 24 میں آتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی چیزوں سے آزمائش لی ان کی، اور ان کو آزمایا، انہوں نے سبھی کو پورا کر دکھایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اور پوچھا، میں نے اور جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام کا لقب سے سلیکٹ کیے، اسی لیے ان کو نبیوں کے باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اب جو جس طریقے سے آج کا جو دور چل رہا ہے، اب جو موسم چل رہا ہے، وہ کون سا موسم چل رہا ہے؟ وہ حج کے دنوں کا موسم چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قیامت تک کے قائم کر دیا۔ بٹ ویٹ مطلب لیکن ایسا کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ زندگی کی کچھ اہم پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کی پہلی آزمائش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان کے گھر سے۔ سب سے پہلی بات تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ قلب سلیم تھے، جیسے سورۃ الشورى میں بہت ہی خوبصورت آیات ہے الا متاع اللہ بقلب سلیم، کہ کامیاب ہوا وہ انسان جو اپنے
दिल को कल्ब सलीम लेकर आया अल्लाह के पास में, यानी कि दिल को पूरा साफ कर लिया है और उसके दिल में कोई भी तरीके की कोई भी किना और कपट और भूख और कोई भी किसी भी तरीके की कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योरली हार्ट। तो वे गुड पीपल सुप्रीम डियर, बट क्यों आता है अच्छे लोगों की जिंदगी में दुख, और वो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही होती है। तो देखते हैं सबसे पहली आजमाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इनके घर से, वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले अपने बाप को दावत दी है। सूरतुल अनाम चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 72, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, तुम बूतों को क्यों पूछते हो, अपना माबूद बनाते हो, मैं देखता हूँ तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में है। तो उनका बाप कहने लगता है, ए इब्राहिम, तुम मुझसे जबान मत लड़ा वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। अब कहा उन्होंने फिर भी बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने अब्बू से बहुत ही मोहब्बत से दावत दी और कहा कि आप शैतान की इबादत न करें, शैतान तो रहमान का खुला दुश्मन है। और सूरतुल मरियम चैप्टर नंबर 19 में कहते, अब्बा जान, जो इल्म मुझे मिला है वो आपको नहीं मिला है। तब उसने कहा, इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरकता है और तू बाज न आया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा या संसार कर दूंगा, या तो मुझे और तू मुझसे दूर हो जा। यानी कि उनके जो बाप का जो घर था पूरा के पूरा बुतों से, उनके घर में जो है बुतों की मतलब पूरी मूर्तियां बनाने की फैक्ट्री थी उनके अब्बा की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सारी चीजों को देखकर बहुत ही गौर फिक्र करते थे और अंदर ही अंदर अल्लाह की जो अल्लाह के बारे में गौर फिक्र करते थे। इसीलिए इनके लिए कहावतें बहुत फिट होती है, वो है शैतान के घर वली की पैदाइश। अब देखिए, पहली आजमाइश जो है घर से ही है। आप सोचे कि घर से अगर निकाल दे तो इंसान पर क्या बीतती है, या फिर अगर घर वाले साथ नहीं देते। देखते हैं आज के दौर में अक्सर लोग जो है घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की तारीफ करते और कहते हैं घर वालों से तो अच्छे बाहर वाले। लेकिन अफसोस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वो मामला भी पेश नहीं आया, सारे के सारे बाहर वाले भी उनके खिलाफ। अब देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो गौर फिक्र है अपने रब के लिए और अल्लाह की जो कहते ना, सूरतुल आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 190 में है, इन्न फी खल्क़िस समावाति व इख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायाति उलिल अलबाब। बेशक आसमान और जमीन में गौर फिक्र करते हैं, यानी कि बेशक अल्लाह ने आसमान और जमीन को बिना फायदे के नहीं बनाया, और जो लोग इसमें गौर फिक्र करते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाकई में ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा गौर फिक्र करते हैं। वो इस तरह कि जब इन्होंने आसमान पर देखा तो इन्हें एक सितारा नजर आया चमकता हुआ, तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन कुछ अरसे के कुछ वक्त के बाद में जो है सितारा भी जो है डूब जाता। फिर देखा इन्होंने चांद को, तो कहा ये मेरा रब है, तो वो भी डूब गया। फिर उन्होंने देखा कि सूरज को, कहा इसकी तो रोशनी बहुत ज्यादा है और सारी और रोशनी फैली है, तो हो सकता ये मेरा रब है। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये भी डूब गया, तो कहा ये कैसे हो सकता है, मेरा खुदा तो डूबने वाला खुदा हो ही नहीं सकता। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो गौर फिक्र था, कहा जाएगा असल साइंटिस्ट तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि किस तरीके से उन्होंने रिसर्च किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खल्कत में, कि अल्लाह कितना अजीम रब है और वो कितना बड़ा है, और उसकी तौहीद, उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तौहीद थी ना,
وہ بہت مضبوط تھی، ان کو اللہ پر بہت زیادہ یقین تھا، لیکن پھر اسی طرح ان کی سیکنڈ آزمائش جو شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بادشاہ نمرود کے سامنے۔ اور دوسری جو ہے نمرود جو ہے وہاں کا بادشاہ ہے، اس نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ سورۃ الصف ورس نمبر 95 میں آتا ہے، بے خبر کود پڑا آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ تھے جب مجھے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، کتنی سوچنے والی بات ہے نا۔ کیا بلیو تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں may I help you؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ میرا وکیل اور کارساز ہے اور وہی میرا نصیر یعنی کہ وہی میرا مددگار ہے۔ یو کو آپ چلے جائے، نو پرابلم، یعنی کہ آپ چلے جائے کوئی بات نہیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو دیکھیں اس دعا کا جو ہے ریپلائی کس طرح دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 69 میں کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہا اے آگ تو کیا ہو جا؟ کول اینڈ پیسفل ہو جا۔ کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو دیکھو کیا ان کا بلیف تھا اللہ پر، کس طریقے سے انہوں نے آگ میں ہونے کے باوجود بھی فرشتہ ان کی ہیلپ کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یو گو، آپ چلے جائیں، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو بولتے نا بارش کے لیے اگر جاؤ تو کیا کرو؟ امبریلا ساتھ میں لے کے جاؤ۔ اللہ پر یقین اور توقع اگر ہو تو انسان جو ہے وہ ہے نا، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے راستہ ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی مثال دی ہے جو اللہ پر توقع کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ راستے کو آسان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو بلیف تھا، یقین تھا آگ میں جانے کے بعد، اور وہ 1 یا 2 یا 3 دن نہیں رہے، کنٹینیوسلی 2 منتھ 2 مہینے تک وہ آگ میں رہے، اور پھر بھی کہہ رہے کہ یہ سب سے اچھے دن ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ سوچو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تیسری آزمائش۔ بائی دا وے ابراہیم علیہ السلام جو ہے فرسٹ مہاجر تھے۔ اب دیکھیں گھر والوں نے ان کو نکالا، ابو نے بھی نکال دیا، اور ان کے جو ملک والے گاؤں والے تھے انہوں نے بھی ان کو نکال دیا۔ اب نکلتے ہیں یہ فلسطین کی اور سفر کرتے ہیں، اور اب ساتھ میں اپنی بیوی سہارا علیہ السلام کو لے کر، تب پتہ چلتا ہے راستے میں ایک بادشاہ ہے، وہ اگر کوئی خوبصورت عورت اس کو ملے یا دکھے تو اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے وہ ریپ کرتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سہارا علیہ السلام سے کہتے ہیں اے سہارا، اس پوری سارے سرزمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی ایمان والا ہے نہیں، اور میں نے اس طریقے سے یہ بات سن رکھی ہے، تو میں یہاں پر میں تم کو اپنی بہن کہوں گا۔ یعنی کہ یہ والا جو جھوٹ ہے اس کو توریہ والا جھوٹ بولتے ہیں۔ شاید آپ جانتے ہوں گے توریہ والا جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ بیسک ورڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم سب جو لوگ ہیں، انسان کی جو پیدائش ہے وہ ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہم اور حوا علیہ السلام سے ہم پیدا ہوئے، تو جس وقت جو شروعات میں تھی وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو ہم پیدا ہوئے، تو اس حساب سے شروعات جو ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ایک توریہ والا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو میں بتانے کے لیے ابھی اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میرے پاس میں ابھی وقت نہیں ہے، اس لیے
आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हमारी पैदाइश हुई है, उस हिसाब से कहा गया। लेकिन बट वो बादशाह अपनी हरकत से बाहर नहीं आता, वो ट्राई करता रहता है सहारा इस्लाम को छूने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आपको हाथ लगाता है तो इससे वो जो है लॉक हो जाता है इसके हाथ और पैर, और फिर वो ऐसा होता है कि वो उनको टच नहीं कर पाता। और फिर वो इसी तरीके से सहारा अलैहिस्सलाम से कहता है कि सहारा तेरे रब से कहे कि वो मुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं टच करूंगा। तो सहारा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं और फिर वो जो छूट जाता है, लेकिन ऐसा वो बार बार करने लगता है, कम से कम 3 बार आता है। और फिर बाद में वो सोचता है ये कोई मामूली औरत तो नहीं है, वो अपनी हार मान लेता है। फिर वो अपने पास से एक गिफ्ट देता है हज़रत सहारा अलैहिस्सलाम को, यानी कि एक लड़की। और वो लड़की कोई मामूली लड़की होती है नहीं, वो लड़की होती है हाजरा अलैहिस्सलाम। कहते हैं लोग इसे तुम अपनी लौंडी बना लो। सहारा अलैहिस्सलाम से वो बादशाह के वहाँ का जो बादशाह होता है वो कहता है कि इस लड़की को ले लो और तुम अपनी लौंडी बना लो। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो पेश करती है, कौन? सहारा अलैहिस्सलाम। कहती है कि आप इनसे निकाह कर लो, हो सकता है इनसे आपको औलाद हो। यानी कि इससे ये बात पता चलती है हाजरा अलैहिस्सलाम को उस वक्त में औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप हाजरा से निकाह कर लो। तो हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या है? सेकंड वाइफ। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी हिकमत थी ये वाली बात में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाजरा अलैहिस्सलाम को हुआ बेटा जिनका नाम है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको हम ज़बीहुल्लाह भी कहा जाता है। अब देखिए चौथी आजमाइश, अब हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इनकी लाइफ को देखे, इनका भी एक मेजर सीन यहाँ पे हो रहा है। वो क्या है? ये है कि सहारा अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं होती, तब होता है इंसान के अंदर एक ईमान जो है वो कम ज्यादा लेवल पे आता है। किसी भी तरीके का इंसान ईमान वाला कहता है लेकिन अपने आप को, पर फिर भी वो कहीं न कहीं कम ज्यादा अपने ईमान के लेवल को जो है पाता है। और इसी तरीके से सहारा अलैहिस्सलाम यहाँ पर थोड़े कमजोर होते हैं, और फिर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म देते हैं कि आप जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को कहीं और अलग से रखे। तो इस हिसाब से अब हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक चटियल मैदान की ओर ले चले, और पानी की मश्क और चंद खजूर की पोटली आपको रास्ते में ये जादेरा देते हैं। और फिर हाजरा अलैहिस्सलाम पूछती है, ए इब्राहिम, वो आर डूइंग, मतलब तो क्या होता है? कहा अल्लाह के भरोसे पे। अब देखे शी वॉज लेडी तवक्कुल, क्या कहती है? नो प्रॉब्लम, मतलब ओके, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह के भरोसे पे आप मुझे छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो देखे दिस इज स्टोरी ऑफ हाजरा अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है देखिए हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बात है, ये इस्लाम जो है यहाँ पर क्या बता रहा है हमें? एक्शन पर उभार रहा है। क्या है? एक्शन। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनको छोड़कर चले गए चटियल मैदान में। रेगिस्तान का सीन बहुत ही तकलीफ वाला मंजर है। कुछ दिन बाद पानी खत्म, खजूर भी खत्म। बेटे को प्यास लगी, पानी शिद्दत से हो गई। बेटे को तड़पता हुआ देखकर उस माँ की जितनी ताकत थी वो पूरी लगा दी वो पानी पाने के लिए, पानी ढूंढने के लिए। सफा से मरवा और मरवा से सफा चक्कर काटती है, सोचती है कहीं से कोई पानी का इंतजाम हो जाए, या कोई ऊपर से देखती कोई किनारे से कोई काफिला जा रहा हो तो मैं उनसे पानी मांग लूं। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। वो बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। तो
अब अल्लाह सुब्हान तआला को उस औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के एडियो के पास फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने वहाँ पर मारा और जैसे ही पर मारा अल्हम्दुलिल्लाह जमजम का चश्मा जारी हुआ। अल्लाह अकबर। जैसे ही हाजरा अलैहिस्सलाम देखते हैं पानी बह रहा है तो कहती है जमजम। इसका मीनिंग उर्दू में होता है रुक, यानी कि रुक जा, वो पानी को समेटने लगती है। एक हदीस में आता है, बहुत खूबसूरत हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो क्यों पानी को रोकती है, अगर वो बहने देती तो मतलब पानी को बहने देना था ना। तो इससे क्या मतलब है कि सोचो अल्लाह ने उस छोटे से कुएं में कितनी बड़ी बरकत रखी है। वो पानी जो है क़यामत तक के रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी अहम बात ये कि आज लाखों लोग हज के लिए जाते हैं, कितने ड्रम पानी लेके आते हैं, कितने वर्ल्ड के अंदर कितने समुद्र है, कितनी नदी है, कितने तालाब है। हर इंसान वहाँ का पानी नहीं पी पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जमजम का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हर किसी ने पिया है, भले वो अपनी लाइफ में एक घूंट क्यों नहीं हो पिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितनी बरकत है, क्या बड़ी इबरत है इस पानी और इस वाक़ये की कि अल्लाह ने इस औरत के इस अमल को, इस बच्ची की तड़प को इतना पसंद किया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्यों रोकती है वो पानी को। सोचो अगर वो पानी को नहीं रोकती तो वो पानी आज कहाँ तक चले जाता। सोचो जरा क्या हाल, क्या मंजर होता फिर उस पानी का। ठीक है, तो देखिए अल्लाह सुब्हान तआला को हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की ये कोशिश इतनी पसंद आई, पानी के लिए 7 चक्कर लगाना सफा एंड मरवा, तो इतना पसंद किया गया इसको हज के अरकान में शामिल कर दिया इस अमल को। क्या इस औरत की सुन्नत को हर हाजी को फॉलो करना है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो और जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हर किसी को, चाहे वो लंगड़ा भी हो तब भी उसको वो सही पूरी करनी है हज के अरकान में से, वरना उसका हज पूरा नहीं होगा, चाहे उसे व्हील चेयर पर क्यों चक्कर लगाना। तो देखिए इसको कितना पुख्ता किया गया, इस अमल को 7 चक्कर लगाना फर्ज कर दिया गया। अब देखते हैं, अब आई 5वीं आजमाइश कि एक बाप अपने बेटे को कई अरसे के साथ मिलते हैं और जब छोटे थे तब करीब 1 साल के, अब होते हैं ये कुछ 14 या 15 साल के और कह रहे हैं। अब देखो बाप और बेटा जब फर्स्ट टाइम मिले तो क्या कंडीशन होती है ना, लेकिन यहाँ पर बाप ने बेटे को देखा और देखते ही क्या कहा, बेटा मैंने तुमको ख्वाब में देखा, मैं तुमको जिबा कर रहा हूँ, बोलो तुम्हारी क्या राय है। अब क्या हो रहा है ये, तो बेटे का क्या जवाब होना चाहिए था। अगर आज का अगर कोई बेटा ले लो और उसको अगर कोई कह दे, उसके बाप ने उसको 1 साल का था तभी छोड़ दिया, वो 14-15 साल के बाद उसको मिल रहा है, इस तरीके से वो बात कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, क्यों आप क्यों मुझे जिबा करेंगे, आप क्यों मुझे 2 चमाट मारेंगे, आपने मुझे छोटे से बड़ा किए, मेरी अम्मी ने किए है, आपका कोई हक नहीं। आज का बच्चा अगर ले लेते, लेकिन वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह क्या तरबियत है उसकी, वो क्या कह रहा है, अब्बू जान, बहुत खूबसूरत अंदाज में, अब्बू जान आप वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आपको जो हुक्म मिला है आप वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब देखे बाप अगर इब्राहिम हो तो बेटा जरूर इस्माइल बनता है, लेकिन आज के बाप को भी देख लो, वो इब्राहिम तो बनना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर चाहता है कि मेरा बेटा जो है इस्माइल बने। ऐसा होता है, होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पहले बाप को इब्राहिम बनना पड़ेगा, फिर बेटा इस्माइल बनेगा। अब यहाँ भी वो इस काम में भी वो कामयाब रहे,
जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म आया तो ये दोनों बाप और बेटे ने इस हुक्म को जो है बजा लाए और ये इस आजमाइश में भी पूरे साबित कदम थे। अब यहाँ भी ये कामयाब थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके इस अमल को इतना पसंद किया कि एक दुम्बा भेज दिया कुर्बानी के लिए, और हम कहा कि हम मौसमों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। तो इस्लाम जो है एहसान करने वाला दीन है। क्या है? इस्लाम जो है जुल्म करने वाला दीन हो ही नहीं सकता, और ना ही ये दीन ऐसा है। ये दीन पूरा के पूरा एहसान करने वाला है। इस्लाम का मतलब ही होता है पीस और अमन। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म मिला है कि आप अपने बाप दीन इब्राहिम पर कायम रहे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? हनीफ थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो मुशरिकों में से नहीं थे। जैसे कि हम नमाज में कहते हैं इन्नी वजहतु वजहिल्लाह जी, इसी तरीके से बहुत ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाले थे, बहुत नर्म दिल थे आप। आज भी हम नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका नाम लेते हैं। अब ये सब खूबियों की वजह से अब अल्लाह सुब्हान तआला ने इन दोनों बाप और बेटे को कि इस अदा को बहुत पसंद किया, और ऐसा पसंद किया कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको ऐसे काम के लिए चुन लिया कि वाकई में वो काम बहुत बड़ा मिसाली काम है। कहा मेरे घर को तुम लोगों के लिए तवाफ और रुकू और सजदा करने के लिए बनाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा पाक और साफ और अच्छा घर है तो वो कौन सा है? वो अल्लाह का घर है, काबा। तो बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा काम है अल्लाह सुब्हान तआला का, कोई मामूली नहीं है। कैसे लोगों को चुना है अपने घर को बनाने के लिए? बहुत ज्यादा मुखलिस कल्ब सलीम वाले लोग थे। अल्लाह सुब्हान तआला वो हमारी औलादों को भी ऐसा बना दे, आमीन। और इसके बाद और एक खबर आ गई आपको। क्या आ गई? कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ दो फरिश्ते आए और वो उनकी कौम पर अजाब डालने आए। आपको क्या करने आए? आपको खुशखबरी देने आए, गुड न्यूज देने आए। किसकी? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की। कहते हैं कि हम आपको खुशखबरी देने आए। फरिश्ते आकर क्या कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? कि हम आपको खुशखबरी देने आए हैं। यानी कि सहारा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी दे दी कि आपको जो है अभी औलाद होगी। अब यहाँ पर सहारा अलैहिस्सलाम शौके कहने लगी ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो बोलते हैं ना कुरान मजीद में बार बार वो आयत आती है अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। बस इसी तरह अल्लाह हर चीज पर क्या है? कादिर है। तो कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपको अल्लाह ने इसहाक व याकूब और यूसुफ इनकी खुशखबरी दी है। तो देखिए क्या लेवल है कि आपका बेटा भी नबी, आपका पोता भी नबी, आपका परपोता भी नबी। आज के दौर में अगर किसी को बेटा पोता और परपोता तीनों भी डॉक्टर है और ये बन जाएंगे, ये बात की न्यूज दी जाए उनको, तो वो अपने आप में कितना प्राउड फील करते हैं ना। तो सोचे, मैं यहाँ इसलिए डॉक्टर की मिसाल दी क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है सब लोग ज्यादातर करके डॉक्टर की डिग्री के ही पीछे सब चल रहे हैं कि सबको जो है डॉक्टर ही बनना है। तो उनके लिए ये चीज जो थी, उनके लिए नबी बनना, इमाम बनना, चुने जाना सबसे बड़ी गुड न्यूज होती थी। इसलिए वो इतने प्राउड फील करते थे। और फिर इसी तरह फिर दो कौमें बनी, जैसे कि इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो सहारा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हाजरा अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। जैसे बनी इसराइल कहते हैं, बनी इसराइल और बनी इस्माइल दो कौमें बनी। बनी इसराइल जो है वो कहाँ से है? इसहाक अलैहिस्सलाम से। जैसे कि इसहाक व याकूब व यूसुफ व दाऊद व सुलेमान व मूसा व हारून, इस तरीके से जो है
ان کو بنی اسرائیل کہا جائے گا، اور بنی اسماعیل ان کو کہتے ہیں جو امت محمدیہ ہے، جو عبد المطلب سے اور عدنان اور عبداللہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آئی، اور آپ کو کہتے ہیں امت محمدیہ، اور اسی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں شامل کرے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین۔ اور ہمارے لیے قربان تو سمجھو یہ بات، جو یہ ٹاپک تھا پورا، جس میں میں نے اتنی ساری ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کے کچھ چند واقعات پیش کری، تو ہمارے لیے یہ قربانی کیا ہو گئی؟ ابھی کیا ہو گئی؟ یہ ایک عظیم یادگار بن گئی۔ دراصل ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی جان کا صدقہ ہے۔ تو سلام ہو ابراہیم پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، سلام ہو ان کی فیملی پر جو اتنی بیسٹ فیملی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو دراصل قربانی جو تھی ان کی یہ ساری نفس کی قربانی، چوائس کی قربانی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا کے پورا ایمان دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی توکل اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک